बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय जी। तो 3 साल से साफ सफाई में छत्तीसगढ़ नंबर 1 सीएम भूपेश बघेल को स्वच्छता का ये अवार्ड दिया गया है। 3 साल से साफ सफाई में छत्तीसगढ़ नंबर 1 बना हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने यह अवार्ड ग्रहण किया। स्वच्छता का ये बड़ा अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 राज्य बना हुआ है छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल को स्वच्छता का यह अवार्ड दिया गया है। पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ राज्य नंबर 1 पर है। स्वच्छता को लेकर 3 साल से साफ सफाई में छत्तीसगढ़ नंबर 1। सीएम भूपेश बघेल को स्वच्छता का यह अवार्ड दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता अवार्ड दिया। और वहीं इंदौर 5वीं बार सबसे साफ शहर की श्रेणी में दूसरे नंबर पर। इंदौर 5वीं बार सबसे साफ शहर की श्रेणी में आ चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर सूरत रहा है। तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा को पुरस्कार दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ये छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। इंदौर 5वीं बार सबसे साफ शहर। अंडमान निकोबार और मेरे मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, Honorable President, we are deeply honored that you have graced this occasion with your presence. You continue to inspire the nation in so many different ways, but your passion and commitment in our journey towards Swachhata is particularly inspiring. Today, we celebrate the Swachhata champions of urban India through this celebration, which is appropriately titled Swachh Amrit Mahotsav. The Honorable Prime Minister had flagged off the Swachh Bharat mission on 15th August 2014 from the ramparts of the Red. तो स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 जिसमें सभी शहर जो We have gone beyond the mission mandate to create more than 3,300 ODF plus cities with hygienic community and public toilets, and nearly 1,000 cities ODF++ with complete fecal sludge management. Nearly 66,000 public toilets across 3,200 cities are now mapped on Google Maps. Municipal solid waste processing has gone up nearly fourfold from 18% in 2014 to 70% today. Nearly 1 lakh rag pickers have been integrated into the waste management chain in our cities, while more than 5.5 lakh sanitary workers have been provided access to various government welfare schemes. Honorable President, the achievements under the Swachh Bharat Mission Urban have been the result of unprecedented collective efforts. Today, the mission has taken the shape of a people's movement, a true Jan Andolan. This is also reflected in the massive growth of the Swachh Sarvekshan, which began as a pilot project in 2016 among 73 cities and is today the world's largest urban cleanliness survey. I congratulate all the cities which have received awards today or will be receiving in the Swachh Sarvekshan Award ceremony, especially the 5 platinum cities or Divya cities. We have made tremendous strides in the last year. More than 1,100 additional urban local bodies have started
source segregation of waste, while nearly 1,800 additional urban local bodies have started extending welfare benefits to sanitation workers. More than 1,500 additional urban local bodies have notified ban on the use, sale, and storage of non-biodegradable plastic bags. I am particularly pleased to know that all the Northeast states have also shown significant improvement. I congratulate all the ULBs which are receiving awards for attaining 3-star and 5-star ratings under the Garbage Free Cities Protocol. Inspired by your success, many other cities are now embarking on their journey to become garbage free. We introduced the Safai Mitra Suraksha Challenge last year among 246 cities to ensure the safety and security of our Safai Mitras, who are the backbone of our mission. Recently, nearly 9 lakh Safai Mitras across nearly 4,000 ULBs were felicitated by citizens and public representatives alike as a symbolic gesture of a grateful nation thanking them for providing invaluable service during the pandemic. Honorable President, we reiterated our commitment towards Swachhta with the launch of the next phase of the Swachh Bharat Mission, Urban SBM 2.0, with the vision of making all cities garbage-free by 2026. The next few years will be dedicated to focusing on holistic cleanliness, clean air, clean land, and clean water. We owe it to our future generations to create greener and inclusive cities. I would like to express my gratitude to all our technical partners, industry collaborators, financial institutions, NGOs, media partners, brand ambassadors, including the ambassadors of resident missions in Delhi, who have always stood by us in our journey. All of you, and most importantly, our citizens, have converted Gandhiji's dream of a clean India into a living, breathing reality. I convey my gratitude and deep respect to all of you. Thank you. Dhanyavad. तो स्वच्छ शहरों का ये सम्मान किया जा रहा है जिसमें इंदौर 5वीं बार नंबर 1 पर रहा। और राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम अब स्वच्छ अमृत महोत्सव के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अवार्ड दिया गया है। हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, कृपया हम सभी का स्वच्छता 2.0 के इस नए सफर में मार्गदर्शन करें। स्वच्छ अमृत महोत्सव तथा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, अंडमान तथा निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल श्री D.K. जोशी जी, सभी राज्यों के उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, स्वच्छता अभियान से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, इस महोत्सव तथा पुरस्कार समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। इन पुरस्कारों के माध्यम से विभिन्न मापदंडों पर स्वच्छता से जुड़े प्रयासों का प्रतिवर्ष ठोस आकलन हो रहा है। मुझे बताया गया है कि आज के स्वच्छता पुरस्कारों का निर्णय 5 करोड़ से अधिक देशवासियों का फीडबैक लेकर किया गया।
इतनी व्यापक जन भागीदारी के आधार पर तय किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए मैं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ। अपने अपने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए मैं मंच पर आसीन मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल की भी प्रशंसा करता हूँ। देवियों और सज्जनों, इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है क्योंकि इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उल्लेख किया करते थे, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इस तरह गांधी जी के अनुसार स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गांधी जी की इसी प्राथमिकता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। देश को पूर्णतः स्वच्छ और निर्मल बनाने के प्रयास हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 35 राज्य व संघ राज्य क्षेत्र तथा लगभग सभी शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। समुचित व पर्याप्त वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की व्यवस्था के आधार पर 9 शहरी क्षेत्रों को वाटर प्लस प्रमाणित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में शीघ्र ही उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की जा सकेगी। स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ सड़क पर या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मैं सफाई मित्र और सफाई कर्मी भाइयों बहनों की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। आज से ही कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में मुझे भरतपुर राजस्थान में वाल्मीकि परिवार में जन्मी और बचपन से ही सफाई के काम में योगदान देने वाली श्रीमती उषा चौमड़ को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे आजकल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। उन्होंने अभाव, असमानता और कुरीतियों से लड़कर सफल होने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवन गाथा से अनेक देशवासी, विशेषकर हमारी बेटियां, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो सराहनीय है ही, पर उस स्थान को निरंतर बनाए रखना उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। मैं चाहूँगा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए। सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रदर्शन का आकलन करने के अनेक मापदंड होते हैं। मैं समझता हूं कि उनके प्रदर्शन का आकलन करते समय स्वच्छता के मापदंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, हमारे सभी देशवासी सुरक्षा व गरिमा के साथ जीवन बिता सकें, इसके लिए भी स्वच्छता की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगातार ये कह रहे थे कि किस तरह से इंदौर 5वीं बार नंबर 1 की पोजीशन पर बना रहा और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई अपने इस पोजीशन को कायम रखे और ऐसा करने में इंदौर कामयाब हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ भी लगातार 3री बार ऐसा राज्य है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ऊपर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।